Hello guys, myself Prakhar Shremali and I have secured All India rank of 149 in GATE CSE 2022. I have done my engineering graduation from Institute of Engineering and Technology, IIT DAVV. Today I am here with a strategy, with a roadmap on which you have to work on so that you can achieve a success in GATE 2023. I have a 8 months roadmap on which I have created, and with all the toppers we have discussed, which contains 8 months strategies. So I will elaborate that 8 months strategies with you. So many of the students have a query that from the month of June, as May has gone away, जून से 8 months remaining है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर and January. So I have created these strategies, and this is not a compulsory that you have to follow this strategy only. I have created with this strategy from my own experience. So by seeing this, you can create your own strategies which can perform in all the 8 months remaining. So let us start with the month of June. In a month of June, let us start with a subject called discrete mathematics. Because in a month from June to July, you have to complete discrete mathematics and data structures and algorithm. Because discrete mathematics is somewhat important for data structures, because in discrete mathematics there are topics like graph theory, set relations, which are useful in data structures and algorithm. When you will study in data structure BFS, DFS, their complexities and their implementations of graph, then graph theory will be the base for that. So from my recommendation, you start with first discrete mathematics, clear all your concepts of graph theory, then start data structures and algorithms. So I think that from June to July it is more than sufficient to cover up these both topics. Now the covering of this topic means not only seeing the lectures of this topic. I mean from covering this topic is that clear all your concepts from these both topics. Once do all the questions of your GATE at the ZEAL modules of this topics, clear all your doubts of the from the modules which you are doing, you know. So in month of from June to July you will complete discrete mathematics and data structure. Now going to the month of July. In July, most of the times, as I have seen, in month of July ma'am will start with the subject of computer network, or ma'am can start it from 15 July or 10 July. So no need to worry. As seeing my experience, I have not seen live lectures, but it's your own choice. I have seen always recorded videos. So from 1st of the July, the dates can be flexible, but seeing the 1st of July, start with the computer network subject. From the month of July, start with computer network and clear all your doubt, as computer network is the most complicated subject I have seen in the GATE syllabus from all the 11 subjects. So take full month from July to August and clear all your doubts of computer networks, and do a module at least once the basic module. And if you get a time, actually the time dependency depends on yourself only. Suppose मैं कोई क्वेश्चंस 3 मिनट में कर सकता हूँ, कोई और बंदा वही क्वेश्चन 4 मिनट में कर सकता है, 6 मिनट में कर सकता है, तो ये टाइम डिपेंडेंसी तो आप पे डिपेंड करती है. पर सेट अप द गोल्स दैट इन 10 दिनों में मुझे डेटा लिंक लेयर को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, और डेटा लिंक लेयर के मुझे इतने क्वेश्चंस, इतनी मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चंस ये सारे कंप्लीट करने हैं. तो आप अपना गोल सेट करिए, फिर उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल डिसाइड करिए. तो और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क जुलाई टू अगस्त में पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जुलाई से अगस्त के बीच में आपने ये जो 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं इनको बिल्कुल भी नहीं देखना है. आप जब जुलाई से अगस्त
में कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हो तो अपना मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर नेटवर्क को दीजिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। पर टाइम टू टाइम आप जो नोट्स बनाएंगे, हाँ एक और बात, आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो अपने हाथ से अपनी लैंग्वेज में आप उसके वेल डिफाइंड नोट्स खुद बनाइए। ऐसा नहीं है कि नोट्स बहुत अच्छी इंग्लिश में होने चाहिए या बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखे हुए होने चाहिए और बड़े बड़े नोट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट पॉइंट्स में अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप आगे के मंथ्स में एंटर करेंगे, जैसे सितंबर अक्टूबर में आप एंटर करेंगे, तब आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि आप इस सब्जेक्ट के वापस से लेक्चर्स निकालिए, वापस से मॉड्यूल्स करिए। आपके पास ये टाइम उस समय बिल्कुल नहीं होगा। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में उस सब्जेक्ट के वेल डिफाइंड नोट्स बनाइए। और जब भी आप मॉड्यूल्स करते हैं तो मॉड्यूल्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हाईली कंसेप्चुअल होते हैं, जिसको करने के बाद, जिस क्वेश्चन को करने के बाद आपको नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके 4-5 कॉन्सेप्ट्स अपने आप माइंड में रिवाइज हो जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप टिक मार्क करके रखिए या स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि आप उसे जब आगे के मंथ्स में करेंगे तो जल्द से जल्द आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और रिवीजन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस मंथ में आपको कंप्यूटर नेटवर्क पूरा अच्छे से करना है और साथ ही साथ इसे छोड़ना नहीं है। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, पर इसके नोट्स कभी कभी पढ़ लेना है, इसके 2-4 क्वेश्चंस देख लेना है। जब जुलाई से अगस्त पे आएंगे तो इनके अगर आपके पास टेस्ट बचे हुए, जो टॉपिक टेस्ट होते हैं, अगर वो बचे हुए हैं 1-2 आपने उस समय नहीं दिए, तो उन टॉपिक टेस्टों को आप इस समय दीजिए, ताकि ये आगे रिवाइज होता रहे और फ्रेशअप होता रहे। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क फिनिश हुआ। अब आ जाते हैं हम अगस्त के मंथ पे। अगस्त के मंथ में आप, जैसा मैंने किया था, आप COA एंड DL, आप COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर और डिजिटल लॉजिक, इन 2 सब्जेक्ट्स को आप पैरेलली चलाइए। क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और DL मैक्सिमम कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे में कुछ ना कुछ यूज़ हो जाता है। तो जब भी आप इन 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलली साथ में पढ़ेंगे तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। पर अगर जैसा आपने ऐसा किया कि COA अभी पढ़ लिया, फिर DL को आपने छोड़ दिया, उसको सोचेंगे कि अक्टूबर नवंबर में यूज़ करेंगे तब पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि DL में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो COA में यूज़ होता है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर बहुत जगह यूज़ होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, बहुत जगह डिकोडर यूज़ होता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, जब भी अपन DRAM का पढ़ते हैं या किसी और का भी पढ़ते हैं। तो जब आपको ये COA में कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो इस मंथ में COA और डिजिटल लॉजिक, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको पैरेलली चला लेना है। ठीक है, और ये छोटा सा सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि एक मंथ में मैं 2 सब्जेक्ट कैसे करूँगा। दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, कंप्यूटर नेटवर्क के मुकाबले दोनों बहुत छोटे हैं, तो उसमें आप बिल्कुल कर सकते हो। और वापस से ये ध्यान देने की बात है कि हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसके कॉन्सेप्ट्स आप बार बार भूलोगे, और अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट जैसे डेटा लिंक लेयर का कॉन्सेप्ट अगर आप भूलें तो ट्रांसपोर्ट लेयर के कॉन्सेप्ट आपके डगमगा जाएंगे। तो छोड़ना नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स पढ़ते ही जाना है, रेगुलरली पढ़ते जाना है कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये हो गया COA DL। अब जब आपका COA DL ख़त्म हो जाएगा, ये जो डेडलाइंस है ये फ्लेक्सिबल है, मतलब मैंने मंथ के हिसाब से लिए कि, तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा हो कि जिसका 1 सितंबर तक ये कंप्लीट नहीं हुआ हो तो वो घबरा जाए, ऐसा नहीं है। 1 से 5 हो जाए, 10 हो जाए या थोड़ा जल्दी भी हो जाए तो उसको आप अपने हिसाब से चला लीजिएगा। अब आ जाते हैं सितंबर से अक्टूबर तक। सितंबर से अक्टूबर तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लीजिए और इसके साथ आप पैरेलली C प्रोग्रामिंग कर लीजिए। अब देखिए, इसमें अपन ने 2 सब्जेक्ट रखे थे, इसमें भी 2 रखे हैं, पर C प्रोग्रामिंग जो है वो मैक्सिमम 8 से 10 लेक्चर का है। मैम के जो वीडियो लेक्चर्स हैं 8 से 10 लेक्चर है, और मैं जो समझता हूँ कि आप सब कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो C प्रोग्रामिंग आपके लिए डेफिनेटली बहुत ईजी सब्जेक्ट होगा इन सब में, क्योंकि बेसिक सा C के जो कंसेप्ट है वही है उसमें, और आखिरी में पॉइंटर्स है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसकी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब देखिए, अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे
तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कंप्यूटर नेटवर्क की तरह आपको ट्रीट करना है। एक्चुअली मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम अगस्त से सितंबर के बीच में इसलिए नहीं डाला, क्योंकि अगर अगस्त से सितंबर के बीच में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डालता हूँ पढ़ने के लिए, तो जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क फिनिश होगा, कंप्यूटर नेटवर्क वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड था और नेक्स्ट बाद में आप ऑपरेटिंग सिस्टम उठाओगे तो आपके दिमाग में पूरी खिचड़ी बन जाएगी। मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आपका फिनिश हुआ, फिर से आपने एक अच्छा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट अपने हाथ में उठा लिया, तो या तो आप कंप्यूटर नेटवर्क कहीं ना कहीं भूलोगे, उसके कंसेप्ट भूलोगे, या ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपका डगमगाएगा। तो इसलिए इस समय COIDL लिया, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लिया। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सितंबर तक आपका कंप्यूटर नेटवर्क बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर उसको रिवाइज भी करोगे। ओके, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से कर लेना है। और तीसरी बात यह कि जब मैंने यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करी थी, इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें मैं सेट रिलेशन, ग्राफ थ्योरी, इन्हीं दो की बात कर रहा हूँ। अब कौन से दो बच जाते हैं? अभी बच जाते हैं प्रोपोर्शनल लॉजिक और ग्रुप थ्योरी। एक्चुअली ये जो दो है, प्रोपोर्शनल लॉजिक और ग्रुप थ्योरी, इसे मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया कि आप इसे जून में पढ़ें, क्योंकि प्रोपोर्शनल लॉजिक और ग्रुप थ्योरी हाईली थ्योरेटिकल है। मतलब आपको इन दो टॉपिक्स को, ये जो दो चैप्टर्स हैं, एक यूनिट्स के बराबर है, इन्हें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है ना। तो याद करने की चीज़ें अगर आप जून में कर लोगे तो यहाँ तक आते आते वो आपके दिमाग से चली जाएगी, तो टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये दोनों टॉपिक्स छोटे से हैं, 10 दिन में आराम से हो सकते हैं। प्रोपोर्शनल लॉजिक को 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, ग्रुप थ्योरी थोड़ा सा टाइम लेगी, पर आप 10 से 15 दिन का जो गैप है उसमें आराम से इसको ख़त्म कर लेंगे। तो इसे इस समय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। इस समय तो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, इन्हें बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए और कंसेप्ट इन दोनों सब्जेक्ट्स के बिल्कुल मजबूत रखिए, ठीक है। अक्टूबर तक आते आते अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म कर लिया है। अब आते हैं, अब एक और बात, अक्टूबर में राउंड 1 की सीरीज चालू हो जाती है, टेस्ट सीरीज की। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अक्टूबर में यहाँ पर ख़त्म किया, बाकी सब्जेक्ट्स भी ख़त्म करें। अब जब अक्टूबर के बाद आपकी टेस्ट सीरीज चालू होगी, तो टेस्ट सीरीज कुछ इस टाइप की होती है। समझ लीजिए, पहला टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का है ना। फिर 7 दिन का गैप होता है अपनी जील की टेस्ट सीरीज में, मान लीजिए DBMS का है। फिर डेटा स्ट्रक्चर का है 7 दिन के बाद, और फिर मान लीजिए CN का है। तो जब अब 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना है। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे 1 से 7 के बीच में, या 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ उस समय आप CN को रिवाइज करिए, जो आखिरी में है टेस्ट, ठीक है। आपके जो टाइम टेबल जील प्रोवाइड करेगा उसमें जो आखिरी का टेस्ट है उसे, और फर्स्ट टेस्ट जिसका है उसको साथ साथ में पढ़ लेना है। और जो मिडिल के टेस्ट है वो अपने हिसाब से एक पेयर बना के दो सब्जेक्ट्स को पैरेलली पढ़ते जाना है, क्योंकि आप एक ही को पढ़ोगे ना तो दूसरे सब्जेक्ट्स आपके मिस होते जाएंगे दिमाग से, इसलिए हमेशा पेयर बना के पढ़ना है। जील भी यही करता है, राउंड 2 की जब टेस्ट सीरीज होगी तब दो सब्जेक्ट्स आपको देगा, तो आप उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये करना है। अब अक्टूबर तक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम और C++ की प्रोग्रामिंग का बोल दिया था, पर अगर कोई बच्चा प्लेसमेंट में बैठता है या कोई दिक्कत आ जाती है उससे पढ़ाई में, तो मान लीजिए अक्टूबर की जगह हम इसे डेडलाइन को नवंबर में शिफ्ट कर देते हैं। पर अगर आपको अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है ये सब चीज़ें, तो वेल देन इनफ है, आप डेफिनेटली 200 के अंदर रैंक निकाल ही सकते हैं। अब अपन इसको नवंबर तक खींच लेते हैं, इतना टाइम अपन 1 मंथ अपन एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि किसी का नहीं हुआ या कोई रिवाइज करना चाहता है, ठीक है। पर जब आप नवंबर में एंटर करेंगे तब आपके पास अभी 2 सब्जेक्ट्स और बच गए हैं। एक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड।
अब ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अपन इसको लास्ट में क्यों कर रहे हैं एकदम, जब फेब में एग्ज़ाम है, यहाँ पे फेब में एग्ज़ाम होती है, तो अपन इसको एट द लास्ट टाइम पे क्यों कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। अभी एक और सब्जेक्ट बचा हुआ है, कंपाइलर एंड टीओसी। ठीक है, तो जब नवंबर से दिसंबर का मंथ है उसमें अपनी जयश्री मैम है जील में जो पढ़ाती हैं, वो कंपाइलर और टीओसी नवंबर से दिसंबर के बीच में ही करवाती है, या 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में कराती है। तो इस समय नवंबर से दिसंबर में आपको कंपाइलर और टीओसी ये दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लेना है, क्योंकि टीओसी में बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको याद रखनी है, जैसे कौन कौन सी लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री होती है ना, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस रेगुलर होती है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है अपने को टीओसी में और कंपाइलर में भी। तो इसको अपन ने इसलिए एंड में रखा इन दोनों सब्जेक्ट्स को, क्योंकि अपन जितना एग्ज़ाम के पास जाते जाएंगे याद करने वाली चीज़ें उतना आखिर में करते हैं, ताकि अपने माइंड में बैठी रहे। अपन इसे शुरू में कर लेंगे तो आखिरी तक आते आते अपने दिमाग से चली जाएगी। और ये जो सब्जेक्ट्स जो अपन शुरू में कर रहे हैं, ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को इन्वॉल्व करते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क में भी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, तो ये इन्हें अपन शुरू में कर लेते हैं। अब जब दिसंबर का मंथ शुरू होगा, दिसंबर से जनवरी के बीच में अपने को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड करना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही मंथ बचा, अपन इसे आखिरी में क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दिखता बड़ा है, पर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग भी 11-12 में मैथमेटिक्स ही लेके आए होंगे सब्जेक्ट। तो जो मैक्सिमम पार्ट है, जैसे अगर मैं मैट्रिक्स को एक्सक्लूड करूँ, इसमें कैलकुलस का पार्ट है, तो जो कैलकुलस का पार्ट है वो बहुत ही इजी है। जेई में कैलकुलस का एक टफर पार्ट आता है, पर अगर मैं गेट की बात करूं तो कैलकुलस का बहुत ही स्मॉल पार्ट है। आपको सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा ये देखना होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखनी होती है, और इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो डेफिनेटली आप एक मंथ में आराम से कर सकते हो, 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक। मैंने ऐसा ही किया था, आप भी इसी टाइप से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, पर आप इससे देख के अपना एक रोड मैप बनाइए। ठीक है, तो 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड किया। अब ऐसा नहीं है कि 1 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में आप पूरा टाइम यही करते जा रहे हैं। इस टाइम पे जब दिसंबर का मंथ चल रहा होगा, तब आपको गेट की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करनी है, और कुछ अच्छे घंटे, मतलब बहुत सारे आवर्स पढ़ाई करनी है, मतलब 8 से 10 घंटे उस समय मैंने करी थी, तो आपको भी करनी है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड इन्हें आप मैंने जैसा किया था, सुबह के जो 2 घंटे होते हैं मॉर्निंग के, जैसे मैं 7 से 9 पढ़ता था, तो 7 AM to 9 AM, आप 9 को 10 भी कर सकते हो, है ना। तो सुबह के जो 2 से 3 घंटे हैं, आप उस समय इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़िए। और जब रात का समय हो जाता है, मान लीजिए आप रात के आखिरी के 2 घंटे बचे हैं पढ़ाई के, मान लीजिए 8 से 10 बजे का टाइम है या 9 से 11 तक का टाइम है, तो वैसे 2 घंटे तो नहीं लगते एप्टीट्यूड में, इतना टाइम नहीं लगता। आप 1 घंटा मान सकते हैं, 1 घंटा रोज एप्टीट्यूड करिए। तो 30 दिन होंगे दिसंबर से जनवरी के बीच में, तो 2 से 3 घंटे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो कम से कम 70 से 80 घंटे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आराम से कर लेंगे, और 25 से 30 घंटे एप्टीट्यूड कर लेंगे। मोर देन इनफ है। आप इतने 1 महीने के अंदर इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर आता है अपना जनवरी का मंथ, 1 जनवरी से 1 फरवरी तक का। इसमें गेट एट द ज़ील की राउंड 3 की सीरीज चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 3 की जो सीरीज होती है, फुल टेस्ट होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से वेल परफॉर्म करना है, और मार्क्स नहीं भी आ रहे, मेरे भी नहीं आ रहे थे,
तो डीमोटिवेट ही नहीं होना है। मार्क्स नहीं आने पे अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते जाना है। जैसे मेरे 40 नंबर आ रहे थे जब मैंने स्टार्ट की थी फुल टेस्ट की टेस्ट सीरीज़, और उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं 1 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में ये नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की दिक्कत हो रही थी जो मैंने जनवरी में करी आखिर में। पर आप ऐसा मत करिएगा, आप दिसंबर के एंड तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जब टेस्ट सीरीज होगी आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से इवेल्युएट करना है और बेझिझक ज़ील की फैकल्टी को भी कॉल करके या मिल के अपनी सारी दिक्कतें बतानी है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे स्कोर, और डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट सोल्यूशन भी बताएंगे जिसको आप फॉलो करना। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी तक आपको बिल्कुल टेस्ट सीरीज देनी है। और आप जो मैंने आपको कहा था कि आपको नोट्स बनाने, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने, आप अपनी लैंग्वेज में अपने छोटे छोटे पॉइंट्स। और दूसरी चीज़ ये थी कि हर सब्जेक्ट की मॉड्यूल में आपने क्वेश्चन टिक कर लेने स्टार मार्क के, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस की मॉड्यूल में होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। बड़े से बड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है उसमें, पर ऐसे क्वेश्चन गेट में डेफिनेटली नहीं आते इतने बड़े बड़े। पर उन क्वेश्चंस को आप जब करोगे ना तो आपके 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो अगर जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें गेट के पेपर में किस चीज़ की होती है, वो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस की होती है। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स आपके लगते हैं। अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो 4 ऑप्शन में तो आप उसे टिक नहीं कर सकते। तो जब आप एडवांस की मॉड्यूल कर लोगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ज़ील ने बहुत अच्छी एडवांस की मॉड्यूल बनाई है। आपको जैसा समय मिलते जाए आप उसके 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करते जाइए। ज़्यादा समय नहीं लगता। आप उसे 10 क्वेश्चन जो उसके 1 घंटे में तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते जाइए जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिवाइज हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आखिरी के मंथ में आपको टेस्ट सीरीज देनी है और अपने आप को इवेल्युएट करना है। तो ये पूरा रोड मैप था। अगर आप इसे फॉलो, ये मैंने बनाया था अपनी प्रिपरेशन के लिए, आप भी इसे देखकर, इससे आइडिया लेकर अपना खुद का रोड मैप बनाइए, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। और जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाकर उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। तो थैंक यू गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया।